हेलो पॉडकास्ट पिलग्रिम्स, फील्स सो गुड टू बी बैक अगेन इतने दिनों बाद। आई होप आपको भी मुझे देखकर उतना ही अच्छा लग रहा होगा। So today we are going to have a one-on-one with someone who usually does all the asking. Someone from the other side of the table. Someone जो रंगोली बनाने के अलावा और भी बहुत काम करता है. So please welcome Ritu Bharadwaj, who is here to talk about the very human side of HR. Hi Ritu, how are you? Hi Sony, I'm good. How are you? All good. Welcome to Brief Banter podcast. Thank you. Thank you so much for having me. So how does it feel? आपका रिज्यूमे देखे बिना ही हमें आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया इस इंटरव्यू के लिए। करोगे आप लोग कभी ऐसा? Right. And now when the AI has come, so from the ATS tool, first screening is done and then interviewer call for the interview. But I'm feeling so glad कि आपने मुझे without seeing my resume यहाँ पर बुलाया है. Okay, so let's begin with the classic question. Tell me about yourself. एक काम करते हैं, let's just flip the script. So I am the interviewer now and I'll ask you the same set of questions you guys asked during the interview. And please make sure to impress me with your answers. ठीक है? I will try my best. Yeah. So yes, please tell me something about yourself. I already know your name and your profile. Sure. I'm Ritu. I belong to a very small town, which is a township of Aditya Birla. And I am working as an HR professional in Kolar. Not that Rangoli wali HR, but yeah, I'm working as an HR. And whenever I meet people, they ask me, where are you working, and what is your profile. So whenever I say I'm an HR professional, they say, okay, is there any opening, or do you know if there is something for me? So yeah, I'm sure you must be getting a lot of such questions. yeah, of course. Why did you pick this career path? वैसे आई एम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग कि लोग एचआर प्रोफाइल क्यों चूज करते हैं। आई मीन कोई स्पेसिफिक रीजन इसके लिए? I'm not sure about other people, but when I was pursuing my MBA, during that time I have decided that I will be working as an HR. I don't know what kicked me, and I mean what felt interesting, but yeah, because though from the outsider perspective I can understand that people think कि HR is something जिसमें सिर्फ recruitment होता है, or else HR will ask us to make the rangoli. These are only two things which HR do. But when I was pursuing my MBA, I have seen that HR has multiple roles, and it is a very wide, I mean, role where I can learn many things and I can connect with new people, learn something. So I think that made me to choose this career path. And the irony is, I am an introvert, and then too I am in HR. So you made this decision while pursuing MBA. While pursuing my MBA, I decided yes. उससे पहले तक नहीं था. उससे पहले I was not sure कि मुझे लाइफ में क्या करना है. But then वही होता है ना, आपको जहाँ तक पहुँचना होता है तो पूरी डेस्टिनी यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा होता है. And most important thing, because I have an elder sister, तो उन्होंने पहले बीकॉम करा. We both have completed our बीकॉम at the same time. उसके बाद I took a break. I said कि मैंने बहुत पढ़ाई कर ली पापा, मुझे अभी नहीं पढ़ना, and I'm not sure कि next क्या करना है. तो पापा ने बोला इट्स फाइन, ठीक है. तो सिस्टर ने MBA स्टार्ट कर दिया था. आफ्टर 1 year आई सेड पापा मुझे भी MBA ही करना है. आपने सोचा कि आजकल सब MBA करते हैं तो ये एक सेफ कोर्स है. राइट, क्योंकि बाकी सारे लोग करते हैं. बट आई थिंक आई टुक द राइट डिसीजन. नाउ आई डोंट रिग्रेट. या Now the most important question, where do you see yourself in 5 years? अच्छा, जब आप लोग ये क्वेश्चन पूछते हो, do you really think कि people have planned their next 5 years? I mean,
होंगे कुछ, ऑब्वियसली कुछ तो ज़रूर होंगे जो ऐसा प्लान करते होंगे, पर सब नहीं करते हैं। Thankfully, no one has ever asked me this question during my interviews. But yes, HR mostly ask this question to all the interviews. So let me think. हाँ, हाँ, टेक योर टाइम। Because I have never, I mean, मैंने कभी भी ऐसे लाइफ को नहीं देखा कि नेक्स्ट 5 years सॉर्टेड है, मुझे पता है नेक्स्ट 5 year में कहाँ पहुंचना है। आई मेक वेरी स्मॉल स्मॉल माइलस्टोन्स, और जब मैं उसको अचीव कर रही होती हूँ, और आई मीन 90% तक अचीव कर लिया होता है, 10% वहां तक पहुंच रही होती हूँ, देन आई डिसाइड कि अब नेक्स्ट क्या, व्हाट इज नेक्स्ट, फिर सोचती हूँ ऐसा क्या है। सो आई थिंक इन नेक्स्ट 5 years आई विल बी एन एंटरप्रेन्योर, आई थिंक सो। आपको नहीं लगता कि इन क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर देना चाहिए या फिर थोड़ा मॉडिफाई कर देना चाहिए, क्योंकि नेट पे इसके बहुत सारे आंसर्स हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स रट के जाते हैं और सेम आंसर्स बोल के आते हैं। हाँ यार, राइट, आई अग्री, मतलब एटलीस्ट इस क्वेश्चन को हटा देना चाहिए, बट व्हाट कैन वी डू, ऐसा होता है ना, कोई एक चीज फॉलो हो रही है तो अब वही सदियों से फॉलो हो रही है। आई थिंक एचआर को भी अपने क्वेश्चंस थोड़े तो चेंज करने चाहिए। आई मीन दे आस्क दिस आई थिंक फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव और वट एवर, आई मीन वो सिर्फ ये देखना चाहते होंगे कि जो भी इंटरव्यू देने आए उसका माइंडसेट कैसा है, आई मीन प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, जहां तक मुझे समझ आता है। आई थिंक वो यही है। Now let's talk about HR's favorite thing, employee engagement activities. So, how does it feel to pull people out of meetings, client calls, and their deep work zones just to play some random games? और ये आप लोगों को कितना पावरफुल फील कराता होगा ना। आई मीन यू गाइस हैव द पावर टू इंटरप्ट डीप वर्क। आई मीन ऑफ कोर्स ये थोड़ा चैलेंजिंग, थोड़ा नहीं कहूंगी, बहुत चैलेंजिंग होता है, बट यस इट इज इम्पोर्टेंट। मतलब मुझे नहीं पता कि बाकी के एचआर जो ये करते हैं हाउ दे फील, आई फील इट इंटरेस्टिंग। हाँ, मुझे उस टाइम पे ऑब्वियसली ये बहुत चैलेंजिंग होता है कि पीपल आर, आई मीन उनकी प्लान मीटिंग्स हैं और वो चल रही है, और वी नेवर नो ना कि कौन किस इम्पोर्टेंट काम में अभी इंडल्ज है, बट उनको क्योंकि हमने टाइम ब्लॉक किया है, वी हैव ऑल्सो प्लान समथिंग फॉर देम एंड इट इज फॉर देयर बेनिफिट ओनली, कि ठीक है उनका माइंड थोड़ा रिफ्रेश हो जाए, तो चलो ठीक है विल डू सम एक्टिविटी। और उस टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि व्हाट इज द हेड काउंट ऑफ दैट एक्टिविटी। बिकॉज अगर मैं बोलूँ, वो एम्प्लॉय के साइड से ऐसा होता होगा कि अरे यार जाकर 1 घंटा वेस्ट करना है और हाफ एन आवर वेस्ट होगा, इतने में तो आई वुड हैव डन समथिंग और आई वुड हैव कंप्लीटेड सम टास्क, ऐसा उनके पर्सपेक्टिव से होता है। बट व्हाट कैन वी डू, हमारा भी तो वही है कि अरे हमें तो कंप्लीट कराना ही है, तो ये तो हमारे KRA में होता है। बट यस ये थोड़ा चैलेंजिंग है। एंड देन जब वो एक्टिविटी बिगिन हो जाती है ना, और अगर लोगों का इंगेजमेंट दिखने लगता है कि हाँ पीपल आर एंजॉइंग एंड दे आर इंगेजिंग, फिर लगता है कि यस वी डिड समथिंग गुड, ऐसा होता है। कभी किसी एम्प्लॉय से आर्ग्यूमेंट हुई है इसको लेकर, लाइक समवन इज सेइंग कि दे आर स्वैम्प्ड विद वर्क, दे कांट जॉइन, और स्टिल आप लोग बोल रहे हो कि नहीं यार थोड़ी देर के लिए आ जाओ, आना ही पड़ेगा। गुस्सा तो बहुत आता है, ऑफ कोर्स एम्प्लॉयज को भी आता है और हमें भी आता है कि यार ठीक है यार, आई अंडरस्टैंड कि आपने अपना काम किया, बट मैं क्या करूं, ये मेरा भी तो काम है, मुझे तो करना ही है इसे। तो मतलब ऐसे आर्ग्यूमेंट टाइप नहीं हुआ है, बट यस मतलब पास्ट में 2-3 एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं जहां पर आई एम जस्ट, आई मीन रिक्वेस्टिंग मल्टीपल टाइम्स कि प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ, अदरवाइज उनके मैनेजर्स को बोल देते हैं कि प्लीज अपने टीम को बोलो दे शुड ज्वाइन, दे शुड ज्वाइन, ऐसा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ मतलब स्टार्टिंग में पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट, बट जब वो देखने लगते हैं कि अदर पीपल आर एंजॉइंग, तो फिर वो आ जाते हैं बीच में कि हाँ हाँ सॉरी मैं काम में था या काम में थी, तो अब ठीक है यहाँ से आई कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट, ऐसा होता है मोस्टली। आई मीन जैसे बिग फेस्टिवल्स है ना, दिवाली है, होली है, इस पे तो पीपल पार्टिसिपेट बिकॉज दे नो कि कुछ होने वाला है। बट अगर आप मिड ऑफ द ईयर कुछ कर रहे हो ना, जैसे मई जून का मंथ हो, ठीक है, ये टाइम पे कोई सीजन नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, अब आपको कोई एक्टिविटी करानी है, तो वो टाइम आई थिंक ज्यादा चैलेंजिंग होता है क्योंकि पीपल आर नॉट ऑन दैट जोन।
तो मतलब इसके लिए भी बहुत सारी चीजें हैं जो एचआर को सोचना पड़ता है। मंथ स्टार्टिंग में मत कराओ, मंथ एंड में मत कराओ, ऐसे टाइम पे कराओ कि हाँ मतलब लोगों को भी अच्छा फील हो एंड दे कैन पार्टिसिपेट। तो दे आर मेनी पैरामीटर्स विच दे हैव टू एनकाउंटर बिफोर प्लानिंग समथिंग, ऐसा भी होता है। एंड उसके बाद कोई आता है और ऐसे बोलता है कि प्लीज यार आज तो मेरे पास बहुत काम है, ऐसे मत करो, आज मत कराओ, कैन वी रीशेड्यूल। फिर ऐसा लगता है कि क्या आपके लिए क्या है, या आपके लिए ही है। आई एम श्योर आप लोग के लिए भी ये बहुत बड़ी दुविधा होती होगी। हाँ राइट, मतलब वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है टू मेक पीपल बिलीव कि ये उनके लिए ही है एंड दे विल एंजॉय। और उस टाइम पे थोड़ा प्रेशर भी होता है कि वो सेशन काफी अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बाद में दे विल थिंक कि टाइम वेस्ट कर लिया। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाह रही थी कि बहुत सारी कंपनीज में हम देखते हैं दैट दे रिजेक्ट कैंडिडेट्स बिकॉज दे हैव अ 3 month नोटिस पीरियड, सेइंग दे कांट वेट फॉर दैट लॉन्ग, पर एट द सेम टाइम देयर ओन एम्प्लॉयज आर आल्सो रिक्वायर्ड टू सर्व 3 months बिफोर लिविंग। ये काफी आयरॉनिकल है। यस दिस इज एरोनिकल। और जितनी बार मैंने जॉब स्विच किया है उतनी बार मैंने ये सोचा है कि क्यों है ये। आई मीन आई अंडरस्टैंड फ्रॉम द कंपनीज एंड द एचआर पर्सपेक्टिव कि आपको चाहिए टाइम हैंडओवर के लिए, तो यू विल आस्क द एम्प्लॉय टू go through the notice period of 2 months 3 months whatever it is from as per the offer letter। पर मुझे ये नहीं समझ आता कि जब अब आपको पता है कि एम्प्लॉय को तो सर्व करना है नोटिस पीरियड, तो उतना टाइम तो देना ही पड़ेगा। बट यस उसके लिए आई मीन मैंने रिक्रूटमेंट कभी कंप्लीटली किया नहीं है, बट मेरे रिक्रूटर्स के साथ बहुत बार इस चीज पे हुई है कि यार आपको पहले पता चल जाता है दिस इज द ओपन पोजीशन, नाउ यू हैव टू डू द हेड हंटिंग फॉर दिस पोजीशन। तो मेरा ऐसे होता है कि प्लीज स्टार्ट कर दो, डोंट वेट फॉर द लास्ट मिनट। एंड समटाइम्स ना बिजनेस का भी से होता है। आई मीन दिस इज काइंड ऑफ पोल खोल, आई एम गिविंग यू द चीट शीट, बट या आई थिंक आई कैन शेयर। तो ऐसा होता है कि कभी बिजनेस भी ऐसा बोलता है कि ओके आई मीन दिस एम्प्लॉय इज लीविंग बट ठीक है वी विल ट्राई टू रिटेन एंड वी थिंक दैट एम्प्लॉय विल अंडरस्टैंड कि ठीक है और मान जाएगा या मान जाएगी, हाँ दे विल स्टे, ऐसा होता है। लेकिन एट द लास्ट मोमेंट ऐसा होता है कि एम्प्लॉय को बहुत अच्छा ऑफर मिल गया है और वो नहीं रुक सकता है, फिर आप देखो फिर उसके बाद हेड हंटिंग शुरू होती है, इमीडिएट ज्वाइनिंग करानी है हमें। देन दे पुट कि इमीडिएट ज्वाइनर चाहिए विद इन 15 days एटलीस्ट, अगर थोड़ा टाइम भी लेना है तो विद इन 15 days ज्वाइन कर लो, ऐसा हो जाता है उनका। अच्छा, apart from your other duties and responsibilities, employees must be coming to you with all sorts of problems, जैसे कि work stress हुआ, manager issues, team drama। तो ऐसा नहीं लगता कि you guys are also working as a therapist? I mean, sort of counseling भी तो देते होगे आप लोग। राइट यस राइट राइट। बट वो एम्प्लॉय उतना समझते नहीं है कि हाँ मतलब दे आर लुकिंग फॉर अ थेरेपिस्ट, दो दे आर अवेयर कि ठीक है हम इनसे अपनी चीजें डिस्कस ही कर पाएंगे, इसका बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं होगा। बट यस बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती है जिसका सॉल्यूशन एचआर दे देता है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं देता है। तो यस मतलब ये फील आई थिंक यही बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये चीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि आप लोगों का पर्सपेक्टिव समझते हो, आपको पता है कि मैनेजर क्या सोच रहा है और आपको ये भी पता है कि एम्प्लॉय क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो डील करना थोड़ा इजी भी हो जाता है बिकॉज यू आर अ थर्ड पर्सन, यू नो बोथ द पार्टीज। तो वो जो भी कंसर्न्स लेके आ रहे हो ऑलरेडी अवेयर है, और समटाइम्स तो हमें पता ही होता है, मैनेजर पहले ही बता देता है कि यार इस बंदे के साथ ऐसे ऐसे हो गया, देखो वो आने वाला है तुम्हारे पास। तो वे आर अवेयर कि ठीक है अभी कोई आएगा तो इट्स फाइन, वो ऐसे हो जाता है। बट यस मतलब बहुत वियर्ड क्वेश्चंस के साथ लोग आते हैं, बहुत सारी वियर्ड स्टोरीज के साथ लोग आते हैं एंड समटाइम्स दे आर लाइक आपको करना ही पड़ेगा, यू हैव टू लिसन एंड यू हैव टू डू समथिंग, आपको देखना ही पड़ेगा। आई एम लाइक व्हाट, ठीक है ओके लेट मी डू समथिंग और लेट मी थिंक ऑफ समथिंग इफ आई कैन डू, ऐसा हो जाता है। What's the best thing about being in HR? आई मीन व्हेन यू आर एचआर नो, आप कंपनी को थोड़ा और बेटर वे में समझते हो, चीजों को मेच्योरली देखते हो। तो आई थिंक आई मीन व्हाई आई लव दिस रोल बिकॉज मेच्योरिटी बहुत आ जाती है।
वैसे ही आप सिर्फ एक एम्प्लॉय हो ना, तो आप अपने जॉब रोल और उसी के अकॉर्डिंग देखोगे, बट व्हेन यू आर एन एचआर तो आप कंपनी को, यू आर दी, आई मीन, फेस ऑफ द कंपनी फॉर द एम्प्लॉय। उन्हें ये लगता है कि, उन्हें ये नहीं लगता कि ये डिसीजन कंपनी ने लिया, उन्हें लगता है ये डिसीजन एचआर ने लिया है, ऐसा हो जाता है। बट जब आप खुद एचआर हो तो आप सब कुछ समझते हो कि ठीक है, बिजनेस ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया होगा, एंड मेनी टाइम्स बिजनेस एक्सप्लेन भी करता है आपको, तो वो भी समझ आता है। और आप ऑलराउंडर होते हो ना, एम्प्लॉय को तो लगता है एडमिन भी यही है, फाइनेंस भी यही है। अगर समटाइम्स ऐसा है कि मैंने पेरोल इनपुट करेक्ट दिया है, ठीक है, फाइनेंस टीम से कुछ मिस हो गया, और ऑब्वियसली अगर आपकी सैलरी में थोड़ा भी डिफरेंस आया, तो यू विल कम एंड यू विल से कि यार आपने क्या किया है, मेरी सैलरी ठीक से नहीं आई है, राइट। तो वो है कि आप उनके लिए तो यू आर द फेस एंड यू आर द गो टू पर्सन, ऐसा है। एंड आई एंजॉय दिस थिंग, आई मीन, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देखकर, बहुत सारी लर्निंग मिली है इसमें, कि ठीक है, हाउ पीपल ग्रो, आई मीन इन कॉर्पोरेट। एंड कॉर्पोरेट की बहुत सारी लर्निंग्स जो बुक में नहीं होती है, जो आप एक, आई मीन, फ्रॉम द अदर रोल आई कैन से कि आप उतना एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, वो सब कुछ आप बीइंग एन एचआर एक्सपीरियंस कर लेते हो। एंड ऑब्वियसली जितनी भी फेस्टिविटीज होते हैं वो, आप, एक प्रेशर होता है ऑब्वियसली कि आपको एंगेजमेंट एक्टिविटी आप सोचना है, कुछ अच्छा एंगेजमेंट कराना है सो दैट पीपल कैन एंजॉय, बट वो करते टाइम यू आप लोगों को ऑल्सो भी अच्छा एंजॉय, लगता यस होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजा आता है। तो दीज थिंग्स आई थिंक क्रिएट एक्साइटमेंट इन दिस रोल, तो ये चीज है। आई थिंक दैट्स इनफ ग्रिलिंग फॉर वन डे। यू नो, एज एन एम्प्लॉई हम सबके दिमाग में एचआर के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। हम लिटरली ऐसा सोचते हैं कि एचआर को करना ही क्या होता है। प्रेशर तो बिल्कुल नहीं होता होगा इस जॉब में। पर मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने डाउट्स क्लियर कर लिए। आई एम फीलिंग ग्लैड टू, क्या ठीक है, किसी ने एचआर को भी समझने की कोशिश की है। So, should we wrap it up in your style? Thank you for taking the time to interview with us. We are still in the process of considering candidates and we'll let you know as soon as we have made a श्योर decision. और श्योर, फिर गायब। हाँ राइट, उसके बाद अनरीचेबल and people are just taking the follow-ups, but I am sure, I mean, I can follow up with you. नहीं, पर honestly, I love this conversation. Thank you so much, Ritu, for opening up and making this conversation so interesting. Thank you so much. It's been a pleasure to be here. Thank you so much. Thank you. And that's where we leave things for today. But your thoughts matter a lot. So please share your feedback in the comment section and I'll see you in the next episode. Thanks for watching.